So today we'll begin with the page number 63, crime detection. Crime scene investigators are always looking out for some physical evidence which can lead them to culprit. Evidence help investigators figure out how and why a particular crime may have been committed. These evidences become important exhibit and proof to help nail the culprit in court. कोई भी क्राइम होता है कहीं, कल्प्रिट होता है दोषी, तो वहां जो एविडेंस यानी कि जो सुराग होते हैं उनको बहुत अच्छे से रखा जाता है और स्टडी किया जाता है। एक तो उससे जो क्राइम हुआ है उसके जो मोटिव है कि किस रीजन की वजह से हुआ है, और दोषी के खिलाफ भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी जो साइंस है इसको कहते हैं फोरेंसिक साइंस, जो कि क्राइम सीन्स पर जाकर वहाँ जो एविडेंसेस हैं उनको स्टडी करती है। Which famous author was first to utilize fingerprint evidence to solve a fictional crime? It's Mark Twain. ये पहले ऐसे ऑथर थे जिन्होंने फिक्शनल क्राइम, फिक्शन होता है जो मिथ्या हो, सच ना हो, इमेजिनरी हो, तो इज राइटर, तो उन्होंने एक क्राइम को के साथ उसको सॉल्व करने के लिए फिंगरप्रिंट एविडेंस का सहारा लिया था अपनी स्टोरी में। So पहले राइटर थे मार्क ट्वेन. Which of the following is not one of the three basic types of fingerprint pattern? It's rectangular. जो बेसिक फिंगरप्रिंट पैटर्न होते हैं या तो वो आर्चेस होते हैं, जैसे आप आर्क लगाते हैं ना मैथ्स में, ऐसे, या लूप्स होते हैं सर्कुलर, रेक्टेंगुलर नहीं हो सकते। ठीक है। Which of these is a name given to the examination of fingerprints? It's डेक्टोलॉस्कोपी। ठीक है, जो कि एक नाम है फिंगरप्रिंट्स को एग्जाम करने का, उससे फिंगरप्रिंट टेस्ट होते हैं। What does the abbreviation DNA stand for? It's deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid की शॉर्ट फॉर्म है DNA। और हमारा जो DNA है वो हमारे पेरेंट्स से मैच करता है, और हमारे जो बाल हैं वो भी हमारे DNA सैंपल है। Which of the following is a biological source of DNA? That's what I talked about just. Hair follicle, eye color and height. Hair follicle, हमारे बालों से भी हमारे DNA को स्टडी किया जा सकता है। आई कलर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, हाइट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि हमारा जो DNA है उसकी जो जानकारी है वो हमारे हेयर फॉलिकल से भी मिल सकती है। Which scientific field of study uses DNA to solve crime? Forensic science. Forensic science वो साइंस है जहां पर जो क्राइम सीन है वहां उस पे जो भी एविडेंसेस हैं हम उनको स्टडी करते हैं और दे try to find out the culprit. So it's forensic science. What could a forensic entomologist study on a corpse? It's insect. Entomology as a tool to solving criminal cases were the first used by Song Si. Corpses होते हैं जो मृत होते हैं, ठीक है, डेड बॉडीज होती हैं, ठीक है, और इनके ऊपर जो स्टडी होती है, ठीक है, कॉर्प्सेस जो होते हैं, आपको पता है ना, डेड अगर होता है कोई, पहले उसकी बॉडी में ये कारण पता लगाया जाता है कि उनका मरने का रीजन क्या है। Artificial intelligence is a special branch of computer science where computers are programmed in order to, similar to the human intelligence. Artificial intelligence is an approach to make a computer or a robot to analyze how smart humans think. This branch, computer science, studies how a human brain thinks, learns, decides, and works when it tries to solve a problem or applies the data collected to produce intelligent software system and machine.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जहां कंप्यूटर को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है जैसे कि इंसान सोच सकता है, ठीक है, कि कितनी अच्छे से इंसान जैसे एनालाइज करता है, सोचता है इंसान का दिमाग, ऐसे ही कंप्यूटर ना सोचे। डैश इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स जॉन मैकार्थी जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर के नाम से जाना जाता है। Alexa is a virtual assistant developed by Amazon. Sophia Humanoid has citizenship of Saudi Arabia. Saudi Arabia की citizenship जिस humanoid यानी के human form में जो robot है उसको है, and the name is उनका Sophia. Humanoid Sophia was developed by Hanson Robotics. जो उसको डेवलप किया गया है वो हैंसन रोबोटिक्स ने किया है। Tesla is an American automotive and energy company that manufacture electric cars and smart and built on AI. Tesla एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स को बनाती है। Dash AI based automated chat system that can interact with humans without need for human supervision. It chatbots जो कि इंटरैक्ट कर सकते हैं इंसानों के साथ, लेकिन उसको चलाने के लिए किसी इंसान की सुपरविजन की जरूरत नहीं होती। ये इतने स्पेसिफाइड और प्री प्रोग्राम्ड है that they can chat with humans, no, as and they don't need any proper supervision. They are pre-programmed. AI is the science of training machine to perform human tasks. AI एक ट्रेनिंग है, एक मशीन्स की एक प्रोग्रामिंग है जिससे कि वो जैसे इंसान काम करते हैं, जो परफॉर्म वो कर सकते हैं काम, वो प्रोग्राम्ड किए जाती हैं मशीन उसको करने के लिए। AI इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ 2 बार AI शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इट्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence was founded as an academic discipline in the year 1956. इसको पढ़ाई में भी शामिल किया गया। और जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है चैटबॉट कि उसमें लिखा हुआ है कि दूसरे इंसान से बात हो रही है, लेकिन इधर से जो हमारी AI बेस्ड चैट सिस्टम है वहां पर इंसान की जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, कि मशीन को ही इतना स्मार्ट बना दिया गया कि एक तरफ से अगर ह्यूमन इज कम्युनिकेटिंग तो दूसरे साइड से किसी और इंसान को आंसर करने की जरूरत नहीं है, द मशीन विल आंसर। Dash is the first city in India to use a robot as a waiter or waitress in a restaurant. इस बेंगलुरु जहाँ जो कि हमारे देश में पहली ऐसी सिटी है जहाँ पर जो वेटर या वेट्रेस है एज ए वेटर या वेट्रेस रोबोट को इस्तेमाल किया है। Dash is a software library developed by the Google Brain team for the use of machine learning. It's TensorFlow, जो कि एक software library है. The Turing test is used to test a machine's ability to match human level intelligence. अब कोई मशीन अगर बनाई जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके तो उसे टेस्ट भी पास करना होता है। अगर वो उस मानक पे खरी उतरती है देन इट गोज फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स। सो इट्स ट्यूरिंग टेस्ट एक मशीन की एबिलिटी कि उसमें ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस कितनी है उसको परखने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट होता है। So today we have done page number 63 and 64. So now you have to complete these 2 pages.